नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर स्टार्टअप कॉन्क्लेव की शुरुआत पाइड कॉलेज में फिकीफ्लो की कोलैबोरेशन के साथ हुई है, जहां पर एंटरप्रेन्योर्स के साथ-साथ यहां के स्टूडेंट्स ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। क्या कुछ स्टार्टिंग बिज़नेस के दौरान आपको मुसीबत आती है या मुश्किलें आती हैं, उस पर आज बातचीत होगी और स्टूडेंट्स का इसमें कैसा रुझान रहेगा, आइए देखते हैं इसी वीडियो में। Of nothing, which I couldn't have if I don't have the money. So yeah, now everybody tried to motivate you that okay, these are the few things which you will apply in your life. You will become very good. You will become very powerful, successful. I will share some reality or the fact check thing. If you are planning to become an entrepreneur in future, 90% startup will fail and already failing, right? So it is not going to be very easy journey for anybody. Even if you are getting 90% in your academic, it cannot guarantee you that when you will be starting or opening any of your company, it will become an unicorn. I think it's required, it's needed. India needs the startup ecosystem, the entrepreneurial ecosystem to go from where it is and spread across India, not just in Bangalore, Delhi, NCR, Bombay, etc. So I think great effort, congratulations and thank you for having us here. Now my young kids, Deepak was asking a few questions. Entrepreneur kaun banega, naukri kaun karega, Aarti spoke about all these things. See, I'll tell you, नौकरी बहुत आसान है, नौकरी मिल भी जाएगी, 10,000 की मिलेगी, 1 लाख की मिलेगी, 50 लाख की मिलेगी, मुझे मालूम नहीं है। But जितने की भी मिलेगी, and I'm telling you as a business person, whatever I pay my employees, their net earnings for the company have to be at least 10 times of that. So do you want to work for me or do you want to work for yourself is your choice. Because you can get whatever you can get, but the company that you work for will actually require 10 times of what you are being paid, each one of you. Now it's about 1 to 10. Specifically, we are building a team around us. And now, because we two founders are there, we still believe कि हमें थोड़ा मुश्किल होता है to delegate work to other people. Like we don't understand कि how do we delegate them, and in terms of ROI, I was saying कि 10 times they should be able to generate. So in that specific, that's a specific question कि how do we do that, and how do we actually recognize कि who can handle what, and is it a good bet? And obviously say if you are in 1 to 10, it's a good position to be in, because many startups do not reach beyond 0 to 1. So to go from there. So yeah, so delegation obviously is hard. It is not easy because in the initial journey, in the 0 to 1 journey, you get used to doing everything yourself, right? And when you have to scale, it is very difficult to understand that I need people to do what I was doing so that I can focus on lot more value added and strategic initiatives than what I have been doing. तो हमारा तो बिज़नेस ही एसएमईज़ को फंड करना है। सो ऑक्सीजो फाइनेंशियल्स में हम लोग एसएमईज़ को लोन देते हैं जो भी उनका बिज़नेस होता है, और बिज़नेस में हम उन लोगों को मटेरियल देते हैं जो भी वो काम कर रहे होते हैं। और इसके अलावा आई थिंक एज एंटरप्रेन्योर्स हम व्हाट वी आल्सो ट्राई टू डू इज़ कि कैसे हम जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी मदद कर सकें। वो मदद हो सकता है अपनी लर्निंग शेयर करके हैं, वो मदद हो सकता है एंजल इन्वेस्टमेंट करके हैं, मदद हो सकता है अपने बिज़नेस के साथ उनको एसोसिएट करके हैं। बिकॉज़ इस जर्नी में आपको काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और वो प्लेटफॉर्म हम कैसे उनके लिए इनेबल कर पाएँ, अपने अपने तरीके से उसमें हेल्प करते हैं। सर, स्टूडेंट्स के लिए इस तरह के कॉन्क्लेव्स कितने ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहते हैं?
जब भुवन जी जैसे लोग आए जो जम्मू कश्मीर से ही हैं, उधमपुर के हैं और इतने सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर हैं इंडिया में, दो दो यूनिकॉर्न इन्होंने बनाई है पिछले 9 साल में, ट्रू इंस्पिरेशन है, बीकन है यूथ के लिए, रोल मॉडल हैं। जब ऐसे लोग आके स्टार्टअप की बात करेंगे तो ऑब्वियस है कि इट विल बी इंस्पिरेशनल फॉर द स्टूडेंट्स, इनके एस्पिरेशन लेवल बढ़ेंगे और बातचीत करने से, अवेयरनेस होने से वो भी सपने लेंगे बड़े कुछ करने के लिए रीजन में। तो ये बहुत ज़रूरी है कॉन्क्लेव्स, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि भुवन जी ने आज टाइम निकाला हमारे लिए और बच्चों से भी बात की, सबकी हौसला अफजाई की इन्होंने यहाँ आके। देखिए, डर होना भी चाहिए, बिकॉज आपकी ज़िंदगी, आपका ज़िंदगी का मूल्यवान समय दाव पे लगा हुआ है। पैसा और नाम और रिकग्निशन बात की बातें होती हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो डर चाहिए। इसलिए डर और व्यापार में कूदने के पहले सबसे अहम चीज़ होती है कि उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझना। अगर ये फेल होगा तो क्या होगा, मेरा ज़िंदगी का 1 साल ख़राब होगा, मेरे 10 लाख रुपए ख़राब होंगे, और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरे मानने में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप रियलिस्टिक होंगे और अपने प्रोज एंड कॉन्स को समझ के चलेंगे और वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार होंगे, तो किसी भी व्यापार में, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में, किसी भी स्टार्टअप में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड वो चीज़ और वो समझाने के लिए अपने तजुर्बों से हम यहाँ पे आ जाए हैं, और आपने जैसा देखा उस इंटरेक्टिव सेशन में हम यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। सर, बाकी स्टेट और यूटीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पर तो एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से फ्लॉरिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो अभी भी उस लेवल की जो है यहाँ पर बात नहीं बन पाई है। क्या ऐसा मैसेज जो आपका स्टूडेंट्स को रहेगा, खासकर उनको जो एक अपना बिजनेस सेट करना चाहते हैं उनके लिए, कि ये कोई मतलब डर की बात नहीं है, आप शुरुआत कीजिए और शुरुआत अगर आप करेंगे तो ही आप कहीं किसी मुकाम पर पहुँच पाएंगे? बिल्कुल ऐसा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। इन स्टार्टअप इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी के मामले में हम काफ़ी पीछे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लोकल प्रॉब्लम्स और लोकल सॉल्यूशंस और लोकल स्टार्टअप्स ही इतने हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है जो बाकी के इंडिया के लोग यहाँ पे आके नहीं कर सकते, और कुछ लोग कर भी रहे हैं लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो आई थिंक डरना ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर अच्छा है। स्टेट गवर्नमेंट की स्टार्टअप पॉलिसी भी है, मैंने सुनने में आया है, ग्रांट्स भी मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट भी ईजी है। ऐसे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स, IIT, IIM, माइट जैसे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट हैं, तो मेंटरशिप भी मिलेगी। मेरा मानना है कि मुश्किल नहीं है, अगर ठान लिया जाए, अच्छी टीम हो, अच्छा आइडिया, अच्छा प्रोडक्ट हो, तो कर सकते हैं, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे कोई भी जगह हो। नहीं, देखिए, बहुत ही इस तरीके के कॉन्क्लेव बहुत ज़रूरी होते हैं, बिकॉज़ ये ना सिर्फ बच्चों को बाहर से स्पीकर्स से मिलाता है, बट ऑल्सो हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए एक आई ओपनिंग कॉन्क्लेव है, जो हमें दिखाता है कि this city also has that entrepreneurial spirit. This is my first time into Jammu, and जिस तरीके के आइडियाज़ सुनने को मिले, जो बच्चों का स्पिरिट था, it was very very heartening. मैं एक्चुअली पर्सनली लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि how I can come next and not just meet but also invest into some of these startups. अक्सर देखा जाता है कि बच्चे खासकर जब स्टार्टअप या कुछ इस तरह का कुछ काम स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो कई बार क्या होता है, फेलियर्स एज वी नो, हम पहले ही कदम पर जो है गिर जाते हैं, तो अक्सर डीमोटिवेशन उनके अंदर बहुत जल्दी आती है कि नहीं, शायद ये काम हमारे लिए बना ही नहीं हुआ, रादर देन ये सोचना कि नहीं, यह शायद इसी गिरने के बाद ही हम लोग जो है खड़ा होना शुरू करेंगे। उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, देखिए, फेलियर और सक्सेस दोनों ही, अगर आप ऐसे सोचें कि एक दो स्टेप्स हैं आपकी जर्नी का, तब आप वो जर्नी बड़ी लंबी है, और ये फेलियर सक्सेस उसका पार्ट होते रहेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्पेस है, जो भी ये करना चाह रहा है उसको दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि 90% ऑफ स्टार्टअप्स आज फेल होते हैं, बट अगर फेल हो जाते हैं तो वापस स्टार्ट करिए। सम ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप्स हैव बीन मेड बाय सेकेंड टाइम फाउंडर्स, कि वो फर्स्ट टाइम फेल हो गए और सेकेंड टाइम उन्होंने अपनी गलतियों से सीख कर और भी बड़ा स्टार्टअप बनाया। सो मे बी फेलियर इज़ अ गुड थिंग। एंटरप्रेन्योर इज़ अ नॉट ईजी टास्क, और जब भी हम इस चीज़ में इंटरेस्ट या इंडल्ज होने लगते हैं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में, नेगेटिव, पॉजिटिव, लोगों की बहुत सारी सोच होती है, फैमिली की सोच होती है, खुद की सोच होती है। तो ऐसे में हम लोग बहुत बार स्टार्ट करने से पहले उस चीज़ को सोचते बहुत ज़्यादा हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो स्टार्ट तो करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट की वजह से रुक जाते हैं?
देखिए इसमें यही मैं कहना चाहूँगी, इट्स द जर्नी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यू नो, आज कॉन्क्लेव्स लाइक दिस ये इसीलिए बहुत ज़रूरी है, जो कि MIT और फिकी फ्लो JKL द्वारा आयोजित किया गया है, कि हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से लाके एक फ़र्स्ट हैंड, एक फ़ेस टू फेस जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको वो एक्सपोजर दे पाएँ, जहाँ पे सिर्फ डीमोटिवेट ना हो हमारे स्टार्टअप्स यहाँ के अपने फेलियर से, बट उसको एक लर्निंग कर्व समझें। तो जब हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लाते हैं, इस्टेब्लिश्ड यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं, वी हैव डॉक्टर आरती गुप्ता जो कि हमारे नेशनल फिकी फ्लो स्टार्टअप के हेड हैं, सो जो बहुत रूटेड हैं सिस्टम में, जब उनके व्यू पॉइंट्स आज हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप सुन रहे हैं, तो ये उनकी जर्नी में उन्हें पिवट करने में ज़रूर मदद करेगा, बहुत हेल्प करेगा। और ये एक ऑन ग्राउंड रियलिटी उनको पता चल रही है, ना सिर्फ उनकी इनिशियल जर्नी, उनके फेलियर्स के बारे में, बट कहाँ से वो अपनी सीड फंडिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। चैलेंजेस अगर फेस करते हैं तो उसके सॉल्यूशंस को कैसे वर्कआउट किया जा सकता है। बहुत ही हमारा एक Q&A राउंड था अंदर। इसके बाद हमारे जो इस्टेब्लिश स्पीकर्स आए हैं वो एक राउंड के लिए भी जा रहे हैं टू इंटरैक्ट विद दी स्टार्टअप्स। वी हैव पुट अप कियोस्क एंड डेजिग्नेटेड स्पेसेस। हमारे स्टार्टअप अवार्ड्स हैं जिसमें 2.5 लाख के हम अवार्ड्स डिस्पेंस कर रहे हैं। सो एक अच्छा एक कॉन्क्लेव है जिसमें वी ट्राई टू क्रिएट अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग फॉर द एंटरप्रेन्योर्स इन द रीजन। तो जैसे कि आपने देखा, जम्मू कश्मीर स्टार्टअप एनक्लेव जो है आज माइट कॉलेज में जिसका शुरुआत हुई, और इसकी कोलैबोरेशन जो थी वो फिकी फ्लो के साथ थी, और जहां पर आपने देखा यहाँ पर स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स के साथ साथ बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होकर इस पे हिस्सा लिया है। आप किस तरह से सोच रखते हैं, क्या कुछ आपकी राय है? और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी भी प्राथमिकता है कि आप जो है जॉब्स ना करें, आप एक बिजनेस वुमेन या बिजनेस मैन बने, आप अपना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करें, एंटरप्रेन्योर बने और उसी के बल पर देश को आगे बढ़ाएं। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।